On 6th of May 2026, a report was received in police station Katwa through reliable sources stating that two brothers, namely Nakul Singh and Nikhil Singh, each of the age of 18 years and 16 years respectively, sons of late Balbir Singh and resident of ward number 10 Katwa, had allegedly been attacked with an intention to kill and were lying in a pool of blood at their residence in critical condition. Upon receipt of the information, FIR number 230/2026 was registered at Police Station Katwa under Section 103, 109, 333, 115 subclause 2 of BNS, and investigation was started. A police team comprising of SHO Katwa and DSP headquarters immediately reached the spot. Both injured brothers were shifted to GMC Katwa initially for treatment, where doctors declared Nakul Singh as brought dead, while Nikhil Singh was referred to AIMS Vijaypur for advanced treatment. The body of Nakul Singh was shifted for post-mortem examination. On reaching the spot, the crime scene was secured and legal formalities were initiated. During inspection of the scene of crime, it was found that the iPhone belonging to deceased Nakul Singh was missing. FSL was called and relevant material evidence was seized and e-Saksha proceedings were conducted as per law. During further course of investigation, several suspects were rounded up and questioned in detail. The ESU team of District Police Katwa did the CDR and technical analysis, which gave us an initial lead. Thereafter, during the sustained interrogation, suspect Parth Verma, alias Sumit, son of Somraj, resident of ward number 9 Katwa, admitted his involvement in the commission of crime. The missing iPhone of deceased Nakul Singh was also recovered on his disclosure in front of a magistrate, and FSL team was again called, which proceeded further as far as the forensics is concerned. During interrogation, accused Parth Verma disclosed that on 6th of May 2026 at around 10:40 am, he visited the house of Nakul Singh and made a phone call to Mohit, alias Bobby, from Nakul Singh's phone at about 11:35 am, and at approximately 12:40 p.m., an argument and physical scuffle reportedly broke out between Nakul Singh and Parth Verma over love interest involving a girl, which soon turned into a verbal and heated exchange and altercation, in which Parth Verma allegedly picked up a cricket bat lying in the room and struck Nakul Singh on the head, causing him to collapse. Meanwhile, Nikhil Singh, younger brother of Nakul Singh, returned home and entered the house. Fearing that he would be caught, the accused allegedly attacked Nikhil Singh multiple times on the head with the same cricket bat, causing him to fall unconscious. After committing the crime, the accused allegedly left the cricket bat at the scene, took away Nakul Singh's phone, and fled away from the spot. This cricket bat was later on seized when our team reached the crime scene. At around 5 p.m., the victim's mother, Jyoti Devi, returned home from office and discovered her sons lying in a pool of blood. Upon her cries for help, neighbors gathered at the scene and informed the police, after which the entire investigation in the case got initiated. Thank you. सही पकड़ा गया जब फरार हो चुका था। और इसमें मर्डर का एंगल क्या है, क्यों इसमें क्या इशू क्या रहा है इसमें? वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इट इज ओवर अ लव इंटरेस्ट ओवर अ गर्ल। जो अक्यूज था क्या उसकी फैमिली से रिलेशन था इसका, जाके वो ये आपस में दोस्त थे। पार्थ वर्मा जो है, जो बताया जिसने पूरा गुनाह किया, क्या वो कठुआ से ही पकड़ा गया या फिर वो कठुआ से ही पकड़ा गया? पार्थ वर्मा जो है, जब ये उसने अटैक किया उसके बाद ये कहाँ भागा? ये अपने ही इधर उधर में था, बट हमारे पास क्योंकि उसके फोन नंबर्स थे और हम उसकी सीडीआर और लोकेशन ले रहे थे, तो वो कठुआ में ही था, उसने कठुआ जिला नहीं छोड़ा था। जब इनका स्कफल हो रहा था, क्या इन्होंने किसी तरीके का कोई ड्रग्स वगैरह कुछ लिया था, उसका कोई सेवन कुछ करते थे?
देखिए, किया हुआ था जब? अभी ये चीज के बारे में मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी तो तभी हम बता पाएंगे। पार्थ वर्मा की उम्र, क्या कुछ पहले भी कोई ऐसी हिस्ट्री है जहाँ पर ये फर्स्ट टाइम ही कुछ इस क्राइम में? सो ये जो है ये जर्नली कुछ छोटी मोटी स्नैचिंग या चोरी के अंदर ये इनका पूरा ग्रुप एक छोटी मोटी चोरियों में कभी इनका नाम आता था। they were sometimes rounded up by the police as well, but पार्थ वर्मा जो है वो 19 साल का लड़का है जो कि ये छोटी मोटी चोरियां करता था। एक ही ग्रुप था इन तमाम जगह? दोस्त थे आपस में। इससे पहले भी इनके घर पे आता था पार्थ वर्मा? हाँ, पार्थ वर्मा दोस्त है तो कभी कभार आता था इनके घर पे। जैसे इसकी मदर की स्टेटमेंट है कि इसके ऊपर पहले भी अटैक हुआ, जैसे लव एंगल्स है, तो क्या इसके साथ वो सारा अटैचमेंट है? देखिए, जो मैं आपको पहले भी सामने आ ही गया जब उसने खुद कहा है कि एक लड़की जो है वो उसको भी वो भी पसंद करता था, मैं भी पसंद करता था, तो उसके पीछे इनकी लड़ाई हुई है आपस में। मैम, जो पार्थ वर्मा और जो मोहित जो क्रिमिनल्स है, उनकी एज कितनी है? पार्थ वर्मा इज 19 years old। मोहित वर्मा को आप क्रिमिनल मत बोलिए, बिकॉज उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है। उसको सिर्फ नकुल के फोन से पार्थ ने कॉल किया था। That's हम it। किस तरह से देखते हैं कि मतलब 19 साल की उम्र में जो है इस तरह के जो है क्राइम कर रहे हैं, ये अभी 18+ के ही हुए हैं, तो कितना दहशत का माहौल जो है, क्योंकि सोसाइटी में तो काफी ज्यादा दहशत का माहौल जो है वो फैल चुका है। देखिए, मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया और ये लव इंटरेस्ट जो आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी आ रहे हैं और उस चीज को लेके दिस क्राइम ऑफ पैशन दैट हैज हैपेंड, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एट द सेम टाइम पुलिस ने इस केस को विद इन अप्रोक्सीमेटली 24-25 आवर्स इसको क्रैक कर लिया है। तो बिल्कुल दहशत का माहौल जो इनिशियली इसमें बना था, उसमें पुलिस ने जिस तरीके से अपना काम किया है, जो अपना रोल निभाया है, उससे लोगों के बीच में एक ये मैसेज भी गया है कि अगर कोई इस तरीके की वारदात करेगा तो वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। उसको जहां से भी पकड़ के लाना होगा हम लाएंगे और केस जो है वो सॉल्व करेंगे। जिस तरह से आपको पुलिस ने पहले क्या किया था कि बड़ी जल्दी इस मामले को सुलझा दिया जाएगा, मैडम क्या देखते हैं सोशल मीडिया पर जो क्राइम वर्ल्ड बनाया जा रहा है, जो बच्चे एक दूसरे की देखा देखी में गैंगस्टर, गुंडे, वेपन या बड़े बड़ी ऐसी चीजों में संलिप्त हो रहे हैं, उस तरफ किस तरह से इन्हें रोका जा सकता है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से नशा मुक्त अभियान एक चला है पूरे जम्मू कश्मीर में, और हम अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं, पदयात्राएं हो रही हैं। बच्चों की ये जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हम उनको भागीदार बना रहे हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस में सभी टीचर्स को, पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में रोप इन करके उनको समझा रहे हैं ताकि जितना हो सके नशे के बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जा सके और लोग बढ़ चढ़ के सामने आए, इंफॉर्मेशन दें, और ये वाली चीज को हम जितना जल्दी हो सके अपनी सोसाइटी में खत्म कर सके। इसी तरीके की जो मुहिम है, जब सारी सोसाइटी एक जन भागीदारी होकर एक सब साथ में आएंगे तो ये क्राइम जो है उसी तरीके से रोके जा सकते हैं, जिसमें नशा, चोरी, ये सारा कुछ एक साथ ही है। दूसरा जो है मैं ये कहूँगी कि पुलिस जो है अगर अपना रोल अच्छे से प्ले करती है और इस तरह की वारदातों को सॉल्व करके जल्द से जल्द जो भी अक्यूज्ड है उसको इफ वी पुट देम बिहाइंड बार्स, तो ये भी एक मैसेज आता है सोसाइटी को कि इस तरीके की वारदात के लिए जीरो टॉलरेंस है। मैम, मैम, आपने जो बताया injured कि है, दोनों जो लड़के थे वो एक ही लड़की को, मतलब उनके साथ फ्रेंडशिप थी, क्या लड़की तो ने तो नहीं कहीं उसको उकसाया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और लड़की का इसलिए हमने नाम भी रिडैक्ट करके रखा हुआ है, जैसे कि आपने देखा, बिकॉज द गर्ल हैड नो रोल टू प्ले। मैम, जो इसका ब्रदर, जो डिकीज का ब्रदर जो इंजर्ड है, उसका फिजिकल स्टेटस अभी क्या है, क्या कंडीशन है उसकी, क्योंकि ही इज द प्राइम विटनेस है वहाँ पे आपके केस के लिए। अभी ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक या कोई भी डिटेल दे पाए। अभी भी वो क्रिटिकल ही है, आईसीयू में है। वी आर होपिंग कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसमें जो आई विटनेस कौन बने, किस प्रकार इसको एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, क्योंकि कोर्ट में बड़े टिपिकल्स होते हैं इसकी जो प्राइम लोकेशन पे जो अक्यूज को फाइनली उसको देखिए, find out विटनेसेस कौन बनेंगे उसका नाम तो मैं मीडिया में दूंगी नहीं, ठीक है ना। तो जो भी विटनेस बनेंगे वो हम जैसे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके अंदर तो रहेंगे। आई विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ विटनेसेस। मैम, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच की बात करें तो किस तरह से जो है कल भी हमने देखा कि एक बहुत बड़े जो है गैंगस्टर्स को पकड़ा गया है, अगर लखनपुर पुलिस की बात करें।
तो वहां पर भी एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है, क्योंकि नेशनल लेवल की न्यूज बनी है, एक मैसेज गया है कि गैंगस्टर जिन्हें दिल्ली पुलिस कब से ढूंढ रही थी और लखनपुर पुलिस ने जो है उन्हें पकड़ लिया गया है। हाँ जी, ये जॉइंट एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें दिल्ली पुलिस के जो ये 3 कुख्यात आरोपी थे, इनकी रॉबरीज वगैरह और चोरी में मुलविस थे, वो यहीं पे पिछले 2-3 दिन से JNK के अंदर ही उनकी लोकेशन आ रही थी। तो हमने स्पेशल टीम्स लगा के रखी थी पिछले 2-3 दिन से, और एक बहुत ही अच्छा जॉइंट ऑपरेशन हुआ जिसमें वो हैंड ओवर किए गए दिल्ली पुलिस को फॉर फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कठुआ के क्या लोकल लोगों का भी उनके साथ कोई संपर्क था या नहीं? नहीं, ऐसा उस कुछ पर्स में नहीं, थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो एक जम्मू कश्मीर में वो अपना गैंगस्टर तो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस पर वो सोपर में रहे काफी दिन तक, उनको कोई हाइड आउट तो मिला होगा वहां रहने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया है, और बाकी जो है वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी, बिकॉज हमारा काम सिर्फ उनको पकड़ने का था और उनको हैंड ओवर करने का था। थैंक यू मैम। थैंक यू। ज्योति देवी जो है, आप ज्योति देवी को इंसाफ पूरी तरह से मिल गया क्या नहीं, क्योंकि ज्योति देवी ने बार-बार मीडिया के सामने पेश किया है। देखिए, एक माँ होने के नाते जो जिस तरीके से अभी उनके साथ ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, बट मैं समझती हूँ कि मेरी उनके साथ और हमारी टीम की उनके साथ जो भी इंटरेक्शन हुई है वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल थी, और हमने उनको आश्वस्त किया था कि जल्द से जल्द उस आरोपी को हम पकड़ लेंगे एंड ही विल बी पुट बिहाइंड बार्स। तो आई थिंक मैं इसको पूरे तरीके से ये तो नहीं कहूँगी कि ये न्याय है, ये न्याय उस दिन होगा जिस दिन ये कन्विक्ट होके अंदर जाएगा। अभी भी हमें इन्वेस्टिगेशन को एकदम फुल प्रूफ तरीके से करना है, जो कि हम करेंगे, और ताकि इसकी जल्द से जल्द कन्विक्शन सिक्योर हो पाए। जिस दिन वो कन्विक्शन सिक्योर हो पाएगी उस दिन मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको पूरे तरीके से न्याय मिला है।